Yes, good morning students. Bacha, today we continue our exercise 7.1 question 6 and read the statement. I hope this concept is clear to you right now as we did 5 questions related to it. Now see what they said. Name the following quadrilaters formed by if any. But they are not confirming that these must be quadrilaters. ये मत सोचना कि 4 पॉइंट हैं तो क्वाड्रिलेटर ही होगा. हो सकता है उनमें से 3 पॉइंट हमारे जो हैं वो कोलिनियर हो जाएं तो फिर तो वो ट्रायंगल ही बन गई, क्योंकि चौथा पॉइंट बचा तो उसके साथ मिलके. क्लियर है? बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. फर्स्ट पार्ट, points are 1 minus 2, 1 comma 0, minus 1 comma 2, comma minus 3 comma 0. Yes bacha, what they are saying right now, we have to check. Let I am writing here A, B, C, D. So AB distance formula, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. It is 1 minus of minus 1 plus 0 minus of minus 2. It is 1 minus minus plus minus minus plus under root 2 square plus under root 2 square. 4 plus 4. So AB is equal to under root 8. 8 के फैक्टर्स 2 बाहर 2 पेयर ही बाहर आता है ना हमेशा स्क्वायर रूट में. ए बी इज दिस. बी सी x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square. What is x2? Minus 1 minus 1 square plus 2 minus 0 square. BC minus 2 square plus 2 square. BC minus 2 square 4 plus 4 under root 8. BC again 2 under root 2. बच्चा when the same value is there is no need to find the factor. जब एक बार सेम under root 8 आ गया है तो अब दोबारा ज़रूरत नहीं है यहाँ से इसको फाइंड करने की. So BC, AB, BC, CD. Now I am doing directly because in 2 I have written the formula. In this one I am doing directly. Minus 3 minus of minus 1 square plus 0 minus 2 square. CD minus 3 plus 1 whole square minus 2 square. CD minus 2 square minus 2 square. It is 4 plus 4 under root 8 is equal to 2 under root 2. Now AB, BC, CD, AD. Yes, what is AD? Minus 3 minus of minus 1 square plus 0 minus of minus 2 square. Minus 3 plus 1 square plus minus 2 whole square. AD minus 3 plus 1 minus 2 whole square plus 2 square. 4 plus 4 under root 8, 2 under root 2. But now all the sides are equal. I told you if all sides are equal, what we have to do? We have to find the diagonals, because diagonals will decide whether it is a square or a rhombus. So now AC. AC minus 1 minus of minus 1 whole square plus 2 minus of minus 2 whole square. It is minus 1 minus minus plus 1 square plus 2 minus minus 2. So AC is equal to 1 1 0, 0 square is 0, 2 plus 2 4 whole square. बच्चा there is when thus there is a single term. जब single term बचते there is no need to find the square. Square find मत करो, square और square root आपस में cancel हो जाएंगे. तो what we left with 4. Now one diagonal is AC, the other one is BD. BD, B and D. Minus 3 minus 1 square plus 0 minus 0 square. Again 0 is 0. So what we left here? Minus 4 whole square. But as you know that square of a positive number is also positive as well as square of a negative number is positive. If there is a confusion, you can solve it. Minus 4 square 16. Now you can find. Don't write कि square और under root कट जाए तो मैं उसकी जगह minus 4 लिख दूँ. No, that is incorrect. So here you will say all sides are
equal and both diagonals are equal, so it is a square. Note it beta. I hope it is clear. I hope it is clear. I am going to erase this side, but till then I start with my second part. Second part, quadrants are 3. बच्चा आप शुरू से लिख लो इसको ABCD या PQR. There is it is not at all compulsory बच्चा to change every time that like I have written PQRS. You can write ABCD also. There is not at all any problem. Now again PQ. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. 3 minus of minus 3 square plus 1 minus 5 square. PQ. 3 plus 3 square plus minus 4 square. 6 square plus minus 4 square. 6 is 36, 4 4 16. कितना आया? 36 plus 16 52 under root. PQ. QR 0 minus 3 square plus 3 minus 1 square minus 3 square plus 2 square 9 plus 4 3 square 9 2 to 4 under root 13. PQ QR RS minus 1 minus 0 square plus minus 4 minus 3 square minus 1 square plus minus 7 square 1 plus 49 under root 50. PQ QR RS. Now PS. P and S. Minus 1 minus of 3 square plus minus 4 minus 5 square minus 1 plus 3 square minus 9 whole square 2 square plus 81. So it is 4 plus 81 under root 85. सी बच्चा ये सारी साइड अनइक्वल है, बट अगर इनमें से कोई ऐसा मतलब डायगोनल में से कुछ ऐसा आ जाए मेरे पास कि जिनमें ए बी प्लस जो हमने कोलिनियर पॉइंट की थी, तो हम डायरेक्टली इसको देख के नहीं बोल सकते कि ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, सिंपल क्वाड्रेटिक होगी. मतलब बच्चा क्वाड्रेटिक की टाइप्स होती है ना, जैसे हमने की थी कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक की टाइप्स होती है. क्वाड्रेटिक होती कौन सी है? पहले तो क्वाड्रेटिक्स वो होती हैं जिनकी क्वाड्रिलेटर्स, सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिलेटर्स वो होती हैं जिनकी 4 साइड्स हो. ठीक है, जिनकी 4 साइड्स होती हैं, क्योंकि क्वाड का मतलब क्या होता है? 4. क्वाड्रिलेटर्स मतलब जिनकी 4 साइड्स होती हैं. लाइक आगे उसकी स्पेशल टाइप्स आ जाती हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम. ये सारी क्वाड्रिलेटर्स की क्या है? स्पेशल टाइप्स. बच्चा स्पेशल टाइप्स मतलब जैसे अगर मैं सिंपल बोलूँ, अगर हम एक सिंपल बात करें, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब ह्यूमन बींग्स है, तो वी ऑल आर इन वन कैटेगरी, हम सब एक कैटेगरी में आ गए. सेम क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 साइड्स होगी वो सब एक कैटेगरी में आ गए. फर्दर अब हमें हमारे नाम मिल गए, हमारी बॉडी शेप है, हमारा डिफरेंट फीचर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाइड होते हैं. ठीक है, तो सेम विद द क्वाड्रिलेटर्स, मतलब जो जैसे जिसकी सारों साइड्स इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल, वो मेरा क्या बन गया? स्क्वायर. जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, वो क्या बन गया? रेक्टेंगल. सेम विद पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मेरा वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम. ऐसे ही मेरा बनता है रोम्बस जिसकी सारी साइड्स इक्वल, मींस हर एक की एक डिफरेंट टाइप होगी. बच्चा अब यहाँ पे देखो चारों साइड्स नॉट इक्वल है, अंडर रूट 52, 13, 50, 85. बच्चा बट मुझे श्योरिटी थोड़ी ना, जब तक मैं डायगोनल ना फाइंड कर लूँ कि क्या ये वाकई क्वाड्रिलेटरल बनती है कि नहीं बनती. अब ये मैं बता कंफ्यूजन दूर करते. तो कौन सी मैंने बताया था कि जब डायगोनल्स की बात होगी तो ऑपोजिट वर्टिसेस आएंगे. तो ऑपोजिट मतलब P और R, मीन्स PR एक बन गया डायगोनल, दूसरा कौन सा बन गया? Q एंड S. नाउ
पी आर 0 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर 0 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर इट इज़ 3 स्क्वायर 9। चलो मैं एक स्टेप शॉर्टकट नहीं करती, कंफ्यूजन हो जाएगी। 4 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। इट इज़ 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 पी आर। पी आर इज दिस। नाउ क्यू एस -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 1 स्क्वायर। यस बेटा जी, -4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 कितना आया? 6 और 5 41। हाँ जी बच्चा, यहाँ से देखो अंडर रूट, अगर मैं 52 के फैक्टर्स बनाऊं, मैं यहाँ से अभी ये रब कर रही हूँ बच्चा। आई एम गोइंग टू रेज दिस पार्ट, नॉट दिस वन। आप चाहो तो यहीं पे वो स्टेप कर सकते हो जिसके फैक्टर्स निकलते हैं, कॉमन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से 52 के फैक्टर 2 26, मैं ऑरल कर रही हूँ बच्चा। 26 फिर 2 फिर 13, 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 13। ये तो ऑलरेडी अंडर रूट 13 ही है। 50 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ से 5 बाहर आया, अंडर रूट 2। ये था हमारा 85 5 1 सा 5 35 5 17, तो ये अंडर रूट 85 ही रहेगा। ये 13 है, ये 41 है बच्चा। अब यहाँ से देखो इनको क्यू आर। नाउ ये आप उसी में कर लेना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर प्लस पी आर। क्यों? ये देखो ये 2 अंडर रूट 13 है, क्यू आर अंडर रूट 13 है, पी आर अंडर रूट 13 है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स, इट मीन्स आप कर सकते हो, इट मीन्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर। Therefore, this is not a quadrilateral. क्लियर बच्चा? दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स गिवन है, मुझे 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इट मीन्स क्या है? इट मीन्स मेरे पास पक्का कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगी। बच्चा अब यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया है कि इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि अगर 4 मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो वो मेरे पास एक क्या बनेगी? क्वाड्रिलेटरल। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि उनमें से 3 पॉइंट्स जो हैं वो मेरे कोलिनियर बन गए। तो 3 पॉइंट कोलिनियर बन गए, चौथा पॉइंट कहीं पे भी लगा लो तो वो क्या बन जाएगी? ट्राइंगल। क्लियर होगी ऑप्शन? तो उसने मुझे ट्राइंगल की टाइप तो पूछी नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उसने मुझे क्या पूछा है? सिंपल पूछा है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है, अगर बन रही है तो कौन सी। तो मैंने बोल दिया दीज पॉइंट्स डज नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर? थर्ड पार्ट, yes but the third part, फोर कॉमा 5 7 कॉमा 6, इसको मैं ले रही हूँ A B C D। हाँ जी बेटा जी, अब ए बी, दिस टाइम आई विल नॉट राइट द फॉर्मूला। 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। ए बी बी सी 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। मैं इसको अभी लिख रही हूँ
अंडर रूट 18, 2 इंटू 3 3 कॉमन, 3 अंडर रूट 2। 10 को क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5, दोनों में से कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा, दैट्स वाई आई हैव रिटन 10 एज सच। ए बी बी सी सी डी 1 माइनस 4 स्क्वायर 2 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। ए बी बी सी सी डी, नाउ ए डी, ए एंड डी 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। अगेन 18 यहाँ पे सॉल्व किया था बच्चा। अब यहाँ से देखो क्लियर तो हो गया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, इधर इट इज ए रेक्टेंगल और इट इज ए पैरेललोग्राम। पता कैसे चलेगा कौन सी क्या है, डायगोनल फाइंड करके। फाइंड द डायगोनल्स। डायगोनल कौन से आएंगे, ऑपोजिट वर्टिसेस ए एंड सी, ए सी। 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5, 0 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 0 तो 0 ही रहा, इट इज 4 2। नाउ बी डी, बी एंड डी 1 माइनस 7 स्क्वायर 2 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर 36 प्लस 16 क्या आया 52। 52 किसके 14 3 ज़ा 2 अंडर रूट 13। बच्चा अगर तो मेरे डायगोनल इक्वल होते तो मेरे पास ये क्या बन जाती है, रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल है, तो क्या बन गई, रेक्टेंगल। बट अब जब मेरे पास क्या है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए बट साइड्स इक्वल है, सो दिस इज अ व्हाट इज दिस विल बी, दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट इट, दिस इज ए पैरेललोग्राम। This is a parallelogram. Now question 7. They are saying find the points on the x-axis which is equidistant from this and this. मतलब जो भी point x-axis पे होगा उसका y coordinate क्या होगा, 0. So let P x, 0 be the point on x-axis. बच्चा अगर ये y एक्सिस बोला होगा तो यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाला 0 होगा, और y वाला यहाँ पे y या 1 2 3 कुछ भी होगा। सो किससे इक्विडिस्टेंस बोला है, a एंड b। बेटा इक्विडिस्टेंस बोला है, इसका मतलब pa इज इक्वल टू pb। इक्विडिस्टेंस का मतलब यही है, फॉर्मूला लगा दो, x2 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 स्क्वायर। हाँ जी बच्चा, यहाँ से 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 ही रहेगा, माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर 9 स्क्वायर। यहाँ से ये अभी बच्चा मैं स्क्वायर रूट नहीं रिमूव कर रही, अभी मैं सिर्फ ये ब्रैकेट खोल रही हूँ। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 25 इज इक्वल टू, बच्चा दोनों नेगेटिव के अगर मैं दोनों माइनस कॉमन निकाल दूँ तो प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा, तो सिंपल प्लस का ही फॉर्मूला लगा दो। अगर कंफ्यूजन है तो मैं कर देती हूँ। यहाँ से सिर्फ इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, क्या बचा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, तो ये आया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। सो मैं यहाँ से लाइक टर्म कंबाइन करी, सिर्फ मैं इसी ब्रैकेट अंडर रूट की बात करी, जब तक मैं स्क्वायर रूट नहीं छोड़ रही तब तक ये नहीं मैं कर सकती कि मैं ये वाला एक्स स्क्वायर इस तरफ ले आऊँ, नो, अनटिल और अनलेस आई डोंट रिमूव दिस स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर फिर 4x, 4 प्लस 25 29, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 प्लस 4 कितना आएगा, यस 81 प्लस 4 85। बेटा अब देखो, अब मैंने सारा सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों तरफ अंडर रूट है और कंप्लीट टर्म पे है, तो आप अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगी तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो आप लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स,
तो यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ ये टर्म जो अंदर थी, सेम हियर। हाँ जी बच्चा, अब लाइट शिफ्ट कर दो सारी टर्म्स, ये क्वेश्चन रब कर लूँ बच्चा यहाँ से। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 85 इक्वल टू 0। सारी साइड टर्म इधर ले आई। नाउ कंबाइन द लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 29 माइनस 85 इक्वल टू 0। सेम सेम कट गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव थे, क्या होंगे ऐड। प्लस 85 में से 29 माइनस कर दो। बच्चा मैं ये इसलिए करके दिखाती हूँ कि गलती ना हो। इफ यू नो द ऑरल कैलकुलेशन, इफ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द ऑरल कैलकुलेशन, इट इज वेल एंड गुड। तो ये आया माइनस 56। माइनस क्यों आया, क्योंकि 85 बड़ा है, अगर 85 बड़ा है तो उसका साइन लगेगा। तो माइनस 56 इक्वल टू 0 माइनस 8x, ये 56 उधर पॉजिटिव x। Sorry. So the point is minus 7 comma 0. Check it. Check it, बच्चा। If there is any issue, बच्चा comment on YouTube. Be fast. Yes, question 10th, sorry 8th. But I'm going to remove this one. Question 8th. क्या बोला है बेटा उसने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 10। बच्चा अब मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं, p 2 माइनस 3 q 10 y और pq इज इक्वल टू 10। pq 10 यूनिट्स ऑलरेडी दे रखा है, तो मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 x2 माइनस x1 स्क्वायर y माइनस ऑफ माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 10। हाँ जी, 10 माइनस 2 8 स्क्वायर y प्लस 3 स्क्वायर 10 8 64 स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। बच्चा पिछली बार तो दोनों तरफ अंडर रूट था, तो मैंने स्क्वेयरिंग की, वो कट गए, लेकिन अब सिर्फ एक तरफ अंडर रूट है, दूसरी तरफ नहीं। तो जब मैं अब स्क्वेयरिंग करूंगी ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे तो ये स्क्वेयर रूट कट जाएगा, बट इस तरफ ये स्क्वेयर होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बोला है मैंने, बस यही कंसेप्ट समझने वाला था। पिछले में दोनों तरफ अंडर रूट था, अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कट करते हैं, क्योंकि अंडर रूट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, अंडर रूट को लिखने का मतलब 1/2, और इसके ऊपर मैंने स्क्वेयरिंग कर दी। तो जब एक्सपोनेंट की पावर याद है, m पावर n मीन्स दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आ गया 1। इसलिए ये कटते हैं, स्क्वायर रूट और जो पावर स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो अब बेटा जी इस तरफ तो मेरे पास अंडर रूट नहीं था, सिंपल टर्म थी, तो मुझे उस तरफ स्क्वायर करना होगा। सो इट इज y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 9 73 6y इक्वल्स टू 100। सो y स्क्वायर 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। y स्क्वायर 6y माइनस आई थिंक इट इज 27, क्योंकि 7 80 27। बच्चा 27 के फैक्टर 9 इंटू 3 27 और 9 माइनस 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर 9y 3y, क्या कॉमन निकला y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चा सी हाउ दिस
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इंटरलिंक्ड, हमने 4th चैप्टर में किया था पर अब इसमें भी यूज़ हो रहा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैथ सिर्फ उन लोगों के लिए ईजी है दोज हु ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जो सिर्फ यही सोच के बैठे ना कि सिर्फ चैप्टर में आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी चैप्टर में आएगा, नो, मैथ सारा ही एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। हम कहीं पे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व, जबकि वो उसका चैप्टर भी नहीं है। तो वो ये कैलकुलेशन उसी को ही समझ आ सकती है बच्चा, दोज हु आर ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो यहाँ से ये दोनों के प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों अलग अलग 0 है। तो y की वैल्यू -9 और 3, यही तो पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। बच्चा द सेम दे आस्क्ड, दे सेड फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, so -9, 3. Now on question 9th, I am going to raise this side बच्चा। Question 9. If Q is equidistant from P and R, find the value of X. Also find the distance of QR and PR. बच्चा अब उसने खुद ही बोल दिया है कि Q equidistant है। Equidistance means according to question PQ is equal to RQ. Clear? Now Q is 0, 1, P is 5, -3, R is x, 6। पहले तो उसने बोला फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ से फॉर्मूला लगा दो। सिंपल में बच्चा सिंपल फॉर्मूला लिख दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर आपको दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। क्लियर? नाउ पी क्यू, पी आगे क्यू पीछे, 0 - 5 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर, यहाँ पे -1 है। चलो बेटा मैंने दोनों ही फॉर्मूले सिखाए हैं आपको, चाहे तो x2 - x1 लगा लो, चाहे x1 - x2। मैं लगा रही हूँ पी क्यू, तो मतलब मेरे क्यू के क्वाड्रेट्स आगे आए क्योंकि क्यू मेरा x2 y2 है। 0 - 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यही कंडीशन लगाई है, आर क्यू के आगे आएंगे 0 - x स्क्वायर प्लस 1 - 6 स्क्वायर, अंडर रूट -5 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर -x स्क्वायर -5 स्क्वायर, इट इज 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 25। बेटा दोनों तरफ अंडर रूट कैसे रिमूव होता है, अभी बताया था, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ गया 41, अंडर रूट और स्क्वायर रूट कट गए आपस में, बताया था मैंने, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए। बच्चा नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन, बस इसके बाद हमारा एक पार्ट बचा, देन वी आर डन विद अवर 7.1। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट 7.2। सो 41 जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, 25 एक्स स्क्वायर कितना आएगा 16 एक्स स्क्वायर। जब बच्चा स्क्वायर छोड़ेगी तो उधर जाके +-4। तो उसने मुझे बोला था फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, कितनी आई +-4। उसके बाद उसने बच्चा क्या बोला है, फाइंड दी फॉर्मूला ऑल्सो, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ ऑल्सो। किसका डिस्टेंस, क्यूआर का डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे, एंड पी आर का, पी और आर का। क्लियर? तो नाउ क्यू आर, ठीक है, क्यू इज 0, 1 आर। बच्चा अब चाहे आर को +4 ले लो चाहे -4, मैं बताती हूँ अभी 1 मिनट। अगर मैं +4 लेके चल रही हूँ तो x इक्वल टू दिस, +4 लेके चल रही हूँ मैं, तो क्यू आर 4 - 0 स्क्वायर 6 - 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 25 अंडर रूट 41। बच्चा अगर अब यहाँ पे और Q 0, 1 R -4, 6 क्यू आर -4 0 स्क्वायर 6 - -1
5 square 16 plus 21 under root 40. See, डिस्टेंस ही सेम, माइनस साइन मैंने क्यों डिस्टेंस सेम आया, क्योंकि स्क्वायर ही होना था ना, चाहे वो पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाता चाहे वो नेगेटिव का। और सेकंड, जो दूसरे वाला जो इसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो जीरो है। अगर कोई और नंबर होता बच्चा फिर तो डिफरेंस आना ही था, क्योंकि अगर -4 लिखती और पीछे +1 होता तो वो -3 बन जाना था, और अगर +4 लिखती और पीछे 1 होता तो वो 5 बन जाना था। क्लियर है? यहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि दूसरे वाला जो था मेरा वो क्या था, 0। उसने बोला था डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, QR का एंड PR का। तो अब PR का डिस्टेंस तो आप लोग डायरेक्टली फाइंड कर लोगे खुद ही, दिस इज योर होमवर्क। चलो मैं एक PR का डिस्टेंस फाइंड कर ही देती हूँ, वरना कंफ्यूज रहोगे। व्हाट इज P नाउ? P इज 5, -3, R 4, 6 ही लेके चल रही हूँ। 4 - 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर। PR का डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ। PR इक्वल टू 4 - 5 स्क्वायर 6 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर। इट इज 4 - 5 कितना आ जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 9 स्क्वायर, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 81, इट इज 82। PR का डिस्टेंस आ गया। नाउ अब अगर इसको -4 लेके चले और R -4,6 PR -4 - 5 स्क्वायर 6 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर PR -9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 स्क्वायर 81 प्लस 81 2 81 √2। तो यहाँ से ये कैसे √, तो है बेटा, ये √ नहीं रिमूव। सी ये डिफरेंस बोल रही थी मैं कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो उसमें दूसरा क्वाड्रेंट जो मेरा था वो 0 था, अगर 0 था दूसरे वाला मेरा तो मेरा सीधा ही आ गया था। तो सॉरी बच्चा, यहाँ से ये फैक्टर्स बनाने भूल गई मैं, सॉरी। यहाँ पे भी हम फैक्टर्स तो बना ही देते हैं। √82, 82 के फैक्टर्स बनाओ 2 41 4 1 4, इसके तो निकलेंगे नहीं फैक्टर, 82 ही रहेगा। जब इसके फैक्टर्स निकालूंगी, इसके शायद निकालूंगी 162 281 9 9 का सीधा 81 होता है, तो 9 √2 आ गया। ये देखो यहाँ पे डिफरेंस देख लो अब खुद ही कि वैल्यू चेंज हुई। अगर दूसरी वैल्यू मेरे पास 0 के अलावा कुछ और है तो साइन चेंज से वो कंप्लीट वैल्यू चेंज हो जाएगी। √82 और क्या आया 9 √2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। बच्चा देखो अब इसमें एक कंडीशन देके 2 अननोन्स दिए हैं, इसका मतलब मेरा आंसर किस में आएगा, दोनों अननोन्स में ही आएगा। क्योंकि अगर एक अननोन था, देखो यहाँ पे एक अननोन था, एक ही कंडीशन थी। अगर 2 अननोन दिए हैं तो मुझे 2 कंडीशन देनी चाहिए थी, बट उन्होंने एक कंडीशन दी है, तो इसका मतलब मेरा आंसर किस में आएगा, x और y में ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 10, लेट जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट है मैंने उसको P ले लिया, P Q एंड R। हाँ जी बेटा जी, अब उसने क्या बोला है कि कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू QR। 3 - x स्क्वायर 6 - y स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इक्वल्स टू QR, नहीं सॉरी बच्चा, P डिस्टेंस है ना, PR
P is equidistant from Q and R है ना, तो से it is PQ is equal to PR. So it is -3 minus x square 4 minus y square. नाउ स्क्वेयरिंग बेटा मैंने देखो वहां पे एंड में जाके स्क्वेयरिंग की थी, आप चाहो तो आप अभी स्क्वेयरिंग कर सकते हो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपका दोनों वाले अंडर रूट कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 3 माइनस एक्स स्क्वेयर 6 माइनस वाई स्क्वेयर. यहाँ से ये स्क्वायर रूट तो कट गया, क्या बचा माइनस कॉमन निकाल दो, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर. इट इज 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू माइनस वाई, सॉरी माइनस, दिस इज प्लस. नाउ बच्चा पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव टर्म इज पॉजिटिव, तो ये मैं इसको अभी स्क्वायर रूट नहीं खोल रही, सिर्फ नेगेटिव का स्क्वायर करके पूरी की पूरी पॉजिटिव टर्म बची. यहाँ पे आया 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y. नाउ इट इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 2 12. ये दिस इज नेगेटिव सॉरी मल्टीप्लाइड 12y एक्स स्क्वायर प्लस 9 6x 16 वाई स्क्वायर माइनस 8y. बच्चा ये मैं पहले भी कैलकुलेशंस में सिखा चुकी हूँ कि इफ देयर इज टू सेम टर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स और विद द सेम साइन वी कैंसल दैट. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कट गए, वाई स्क्वायर कट गए, तो क्या आया 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y. ये भी 9 इधर ले 9 6x माइनस 16 प्लस 8y इक्वल टू 0. कैलकुलेशन कर रही हूँ, सारा का सारा इधर शिफ्ट कर दिया, जो पॉजिटिव थे वो सारे नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव. नाउ कंबाइन द लाइक टर्म्स, कांस्टेंट कंबाइन करो, माइनस 9 36 और माइनस 16, बस यही कांस्टेंट टर्म थे 9 36 16. उसके बाद एक्स वाली टर्म माइनस 6x माइनस 6x, उसके बाद वाई वाली टर्म इज इक्वल टू 0. ये तो 9 कट गए, 16 36 माइनस 16 20 माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू 0. बच्चा क्या कॉमन निकल रहा है 4. पहले तो मैं इसको x में लिखूं, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा -4 माइनस सॉरी प्लस 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो जो इधर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 0 ही बन जाना. तो यहाँ पे कर रही हूँ बेटा वो पार्ट सॉल्व. तो ये आ गया, दैट इम्प्लाइज 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. दिस इज द required relation. So I hope it is clear to you now. There is not at all any problem in this exercise. But if there is any, please ask your doubts because we are having very less time. Clear? So I hope it is clear. Okay, bacha, goodbye. All the best.